डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक ट्यूटोरियल 9 का टॉपिक पढ़ा था और आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्ट on electric dipole in uniform electric field. Uniform electric field. Or act on electric dipole in uniform electric field. In uniform electric field, E vector a electric dipole AB, a electric dipole AB is placed with angle theta at point A, negative charge -2, at point B, positive charge +2. We know that electric direction of electric dipole moment is negative charge to positive charge. Direction of electric dipole moment D vector is negative charge to positive charge. The angle between D vector and D vector is theta. We know that force act on positive charge +2 in uniform electric field. F vector equal to Q E vector in the direction of electric field. Force act on positive charge in uniform electric field. F vector equal to Q E vector in the direction of electric field. And force act on negative charge. Force act on negative charge. F vector equal to -2 E vector in the opposite direction of electric field. Both forces are equal in magnitude, opposite in direction, but non-collinear. Therefore, total force या net force act on electric dipole is 0. And non-collinear forces हैं, it makes a path or torque. This point is C. This angle theta. This is also angle theta. Torque का फॉर्मूला और magnitude of either of force, magnitude of either of force into perpendicular distance between line of action of forces. Line of action of forces. टॉर्क को अपन डिनोट करते हैं टो से। Magnitude of either of force Q into E. Negative sign indicate here direction of force is the opposite direction of electric field. So magnitude of either of force is Q and perpendicular distance between line of action. इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और जो लाइन both line of forces A
विद एंगल 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है वो क्या है, ये। तो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC into BC in right angle triangle ACB, in right angle triangle ACB, in a right angle triangle ACB हमें BC डिटरमाइन करना है और डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय 2a। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल की फ्रंट साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है, इसकी फ्रंट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमें परपेंडिकुलर डिटरमाइन करना है, हाइपोटेन्यूज नोन है, इसलिए जो डिटरमाइन करना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB। और BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, AB क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू sin थीटा, और BC इक्वल टू AB sin थीटा, और AB की वैल्यू कितनी होगी, 2a। BC इक्वल टू 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। Since therefore torque Q E into 2a sin theta. Since you know that electric dipole moment P equal to Q into 2a, 2 into 2a, 2 into 2a equal to P. Now we get torque equal to PE sin theta, torque equal to PE sin theta. This is equation first. In vector form, torque is vector quantity, P is vector quantity, electric dipole moment, and electric field is also vector quantity. और sin थीटा कब आता है, कौन से प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आ गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। स्पेशल केसेस में पढ़ने हैं। फर्स्ट स्पेशल केस है if P vector and E vector are parallel to each other, it means P vector parallel E vector, और P वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल होंगे, ये E वेक्टर है और ऐसे P वेक्टर होगा तो पैरेलल टू ईच अदर हो गए। इट मींस एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो sin थीटा इक्वल टू sin 0 इक्वल टू 0, और टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, और PE sin थीटा की वैल्यू 0 होगी इसलिए 0। तो इन दिस केस टॉर्क इज 0, और दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस, if P
P vector perpendicular E vector, P vector perpendicular E vector, ये E vector है और ऐसे P vector हो जाए तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 90 डिग्री होगी। P vector perpendicular E vector, इट मींस थीटा इक्वल टू क्या? 90 और sin थीटा इक्वल टू sin 90 इक्वल टू 1। If P vector and E vector are perpendicular to each other, perpendicular to each other, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया? P E sin थीटा, P E sin थीटा और P E की वैल्यू, P E का sin थीटा की वैल्यू होगी 1 और ये आ गया P E, ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू टो इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू क्या गया? P E। थर्ड केस, if E vector and electric field E vector are anti-parallel to each other, anti-parallel to each other, this is direction of electric field और ये डायरेक्शन होगी P वेक्टर की। P वेक्टर और E वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे। इट मींस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और sin थीटा इक्वल टू sin 180 इक्वल टू अगेन 0 और अगेन 0 हो गया तो इक्वल टू क्या होगा? P E sin थीटा, तो इक्वल टू P E sin थीटा और ये आ गया अपने पास P E into 0 और ये वैल्यू होगी 0। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो फर्स्ट केस में टो की वैल्यू क्या आई थी? 0, अपन ने कहा स्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस में टो की वैल्यू 0 आई, इसे कहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों में टो की वैल्यू 0 है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है बिकॉज इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम और इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम होगी, इसलिए क्या है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और इस केस में मिनिमम होगी, इसलिए क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट और नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। A electric dipole is electric dipole of dipole moment of 5 into 10⁻⁹ coulomb into meter is placed at angle 30 degree with uniform
electric field of magnitude or into 10 raised to 4 or into 10 raised to 5 Newton or Coulomb. Calculate torque or atom electric dipole in uniform electric field. ये क्वेश्चन है। A electric dipole of dipole moment of 5 into 10 raised to minus 9 coulomb into meter is placed at angle 30 degree with the uniform electric field of magnitude 4 into 10 raised to 5. Calculate torque atom electric dipole in uniform electric field. Answer given values given फर्स्ट क्या गिवन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P 5 into 10 raised to minus 9 कूलम into मीटर और सेकंड वैल्यू क्या है E 4 into 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम और थीटा इक्वल टू कितना 30 थीटा इक्वल टू 30 तो इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो हमें निकालना है डिटरमाइन करना है तो टो का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा टो इक्वल टू पी की वैल्यू 5 into 10 raised to minus 9 तो पी की वैल्यू पुट कर दी अपने 5 into 10 raised to minus 9 ई की वैल्यू कितनी है 4 into 10 raised to 5 4 into 10 raised to 5 और साइन 30 सिंस साइन 30 की वैल्यू तो टो इक्वल टू 5 into 10 raised to 9 4 into 10 raised to 5 और इसकी वैल्यू होगी हाफ ये से कैंसिल हो गया 2 आ गया टो इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 into 10 raised to 9 माइनस के हो गए प्लस के 5 हो गए तो 10 raised to minus 4 और ये आ गया 1 into 10 raised to minus 3 न्यूटन into मीटर ये टॉर्क की वैल्यू ये क्या रहेगी टॉर्क की वैल्यू ओके एक क्वेश्चन और अपन पढ़ेंगे टॉर्क की वैल्यू आ गई another question calculate that ratio of acceleration of neutron 1h2 and alpha particle 2He4 in uniform electric field
field. You know that uniform electric field means force act on charged particle F equal to QE. Force act on charged particle F equal to Q into E. If mass of charged particle is m and acceleration is a, then from Newton's second law, from Newton's second law, F equal to m. This is equation first, this is equation second. We get from equation first and second, we get ma equal to q, ma equal to q, और a equal to q e by n. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू these three particles के लिए क्या है, सेम है, बट चार्ज एंड मास both are different for each particle. For proton, mass और proton charge Q equal to E और M equal to M. तो AP equal to E by MP, ये इक्वेशन है. और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन 1s2 AD इक्वल टू, अब इसके क्या है, इनकी वैल्यू यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में क्या है, 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज की वैल्यू होगी E, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन के मास का टाइम्स होगा 2 टाइम्स, तो ये 2 मास ऑफ प्रोटॉन. A D इक्वल टू E बाय 2 mp, और ये इक्वेशन कितनी होगी, और अल्फा पार्टिकल 2He4 वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स के इक्वल होगा. तो 2 प्रोटॉन्स, 1 प्रोटॉन पर चार्ज हो गया E, 2 प्रोटॉन्स पर चार्ज हो गया 2E, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. इट मींस A अल्फा इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपन पुट करें, Q की वैल्यू कितनी हो गई, 2E, कैपिटल E की वैल्यू कैपिटल E आई है, और ये आ गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 2E बाई 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. ये सेकंड का हो गया 2, ये आया E बाई 2mp, E बाई 2mp. ये इक्वेशन अपनी कितनी हो गई, 5. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, रेशियो AP, रेशियो AD, रेशियो A अल्फा इक्वल टू E बाई mp, E बाई 2mp, और E बाई 2mp, या E बाई 2mp, E बाई mp कॉमन है, इसलिए क्या आएगा, AP रेशियो AD
E is term multiply by 2, या है 2:1:1. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगली क्लास में